everyone have जो भी इस क्लास में है, they have all done their task very well. The thing is, always write the first word in capital letter, okay, which I've already informed you in the previous class about punctuation और capital letter वाले क्लास में कि फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल रखना है, ठीक है। बाकी सब वेल एंड गुड था, सब अच्छा था, ठीक है। और आई विश कि जितने इस क्लास में है या जो भी है, सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन one by one, please introduce yourself to Simran and to whole of the class, okay? I'll start with Prachi only. So Prachi is the smallest student in our class. She is in 9th or 10th in something, okay? Prachi, please introduce yourself. Good evening, everyone. First of all, thank you for giving me opportunity to introduce myself. I hope you all are fine. My name is Prachi. I am 14 years old. I study in ninth class. I live in Ludhiana and I like traveling and enjoying with my friends. My hobbies are painting, dancing, singing. Good, very Thank good. you. So Prachi, do you want to ask something from Simran? Yes. Please do. Simran, Prachi wants to ask something from you. Can you please switch on your camera? Ask Prachi. Yes. How Hariom are and you? Ravi, please switch on your cameras. Yes, Prachi, you can ask. How are you, Simran? I am fine. I am fine, Prachi. How was you? I am also fine. Anything And else? what are you doing? Prachi, please continue your question. And what are you doing now? At present, I am learning SSC. SSC. Okay. Okay, she's I complete my she's trying to complete his like government job or studies, right? For government yes, job. ma'am. Okay. Thank you so much, Prachi. दिख रहा है कि you are improving yourself. Thank you so much. Ilma, can you please introduce yourself? Yes, ma'am. Hello, everyone. First of all, thank you. I hope you all are doing well. And thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Ilma. I am 17 years old and I am learning English. I am from Himachal Pradesh and I belong to a joint family. Right. You want to ask something from Simran? Hello, Simran. Hello. Why do you What's want to your learn name, sir? English? I want to learn to English because for self studies and improve myself. Okay, good. Thank you so much, Ilma. Hariom, can you please introduce yourself? First of all, I would to introduce myself. My name is Hariom and I am 17 years old. And currently, I complete my 12th class in SBD Bakner, Delhi. Both are sitting And my together hobbies. only. मुझे दो आवाज आ रही है तो एक म्यूट कर दो, ठीक है। और हरिओम, आपका बैक कैमरा ऑन है तो आप उसे फ्रंट कर लो, ठीक है। Because ma'am, she is my sister. Yes, I am aware about that she is your sister. पर ये ना, मेरे को दो आवाज आएंगी, सभी क्लास को दो आवाज आएगी, उधर से भी आवाज आ रही, तो इसलिए हमसे ओके ओके नाउ यू मैम, कैन मैंने से कहा था आप अलग रूम में चले जाओ. हाँ, you can sit in some other room also. Okay, please continue. Please continue, Hariom. Yes, ma'am. Continue करो introduction. And my hobby is playing games and also physical games like kabaddi, cricket, football, etc. It means you are good in sports. It means आप sports Yes. में अच्छे हो. Okay. You want to ask something from Simran in English? No. Simran, what's your purpose to learn English? Your mic is mute, Simran. Hariom, now you can turn on your mic and everything so that I can
check what Simran is saying. Yes, Simran. My purpose to learn English for my education and myself. And how can you use your English in your education, and how to improve yourself? To take my exams and to conversation with someone. In Conversation to other someone. Yeah. Okay, great. You both are brother and sister, so you can communicate from each other only in English now. So, Simran, I would like to introduce myself also. My name is Mahaksood, and I am here to teach you about the English as well as how you can speak the English, along with then the fluency as well as the grammatical errors, all of this. And I am also a working professional. The timing of the class is 9 to 10, but I'll provide you the link by 8:50, and you can join it so that you can check if there any network issue or something like that. Okay, so welcome to the batch. Okay, thank you so much. So Ravi, now is your network stable? Yes. Okay, yes, please continue. Okay. Hello, Simran. First of Hello. all, thanks, Mac, giving me this opportunity. Tell about myself. I hope you are doing great in your life. First of all, I would like to tell my name. My name is Ravi, and I live in Delhi. And I am belong nuclear family. That's all about me. Thank you, Ravi. Ravi, you want to ask something to Simran? Why do you want to learn English? Everyone asking the same question only. She have already informed. She want to learn English for her education purpose and everything. Change the question, no? What do you want in your life? What do you want in my life? Basically, अभी तो कुछ नहीं. Hello. Ravi. Hello. Ravi wants to say that what do you want to achieve in your life? Okay. Network आप issue, अपने bro. Network. अपने सिमरन आप क्या अचीव करना चाहते हो अपने लाइफ में? बेसिकली मैं अभी अपनी स्टडीज ही कर रही हूँ, तो मेरे गोल एक गवर्नमेंट जॉब है, सुटेबल गवर्नमेंट जॉब, जिससे मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सकूँ. You are looking for a government job, right? You are preparing for that. Yes. Okay, good. Yes, ma'am. How are you, Sujit ji? Long time. टावर नहीं आ रहा था, नेटवर्क की दिक्कत आ रही थी. Oh, okay. So there's a new student in our batch. Batch में new student आई है, Simran. Is the sister of Hariom only. Okay. So I would request if you can introduce yourself a little, and you can ask some question also from Simran. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Sujit. My name is Vikumar. I am 24 years old. I live in Delhi. I am belong to a nuclear family. My favorite game cricket. I am very hardworking. I work as a accountant. Good, Sujit ji. There are some grammatical error. वो आप क्लास वगैरह कंटिन्यू लोगे तो आई एम श्योर कि आप उसको टैकल कर पाओगे. Anything you want to ask from Simran? In which class do you read? मैं 12 पास आउट हूँ और एट प्रेजेंट मैं BA फर्स्ट ईयर हूँ. Simran, try to speak in आवाज English, clear. no? Try to speak in English. आवाज क्लियर नहीं आ रही दोनों की. I can complete my graduation at present. I am doing BA first year. Graduation complete? Yes, last year. No. Simran, 12th you have complete. completed your 12th and now you are 12th, pursuing your BA first year. Right? Right. Okay. So everyone has introduced yourself.
ओके उन्होंने सबने अपना इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है. आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गिव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन टू योर अबाउट योरसेल्फ टू एवरीवन, कि आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, और कुछ hobbies and everything, why you want to learn English, why are you in the class and everything. Hello, good evening, everyone. My name is Simran, and I am from Delhi, Narela, Delhi. I've done my graduation for last year. At present, I learn SSC. My hobbies is learn new things, and I learn English for my studies and my self respects. Okay, so there In was which one. area, in which हाँ हाँ वो बात करो in which करो. area live in Narela? Swatantra Nagar. Oh, I am also live in Narela. Very good. So you are like neighbors to each other. So one more thing I want to discuss. Like Simran has done some grammatical errors. Okay. The first thing Simran I want to inform you कि जब भी हम hobbies के बारे में बोलते हैं सबके लिए है वैसे तो ये, when we speak about our hobbies, so we use are. My hobbies are, because एक hobby नहीं होती, we use are not is. ठीक है. माई हॉबीज आ आएगा उसके अंदर. ठीक है. और आपका थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है. यू आर सेइंग कि यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन. नो, यू हैव कंप्लीटेड योर 12th एंड नाउ यू आर परसुइंग. परसुइंग का मतलब होता है जब हम वो कोई चीज कर रहे हो. लाइक अभी मैं MBA कर रही हूँ, आई एम परसुइंग माई MBA, राइट. अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन. या आई एम परसुइंग माई 9th क्लास, मैं 9th क्लास कर रही हूँ. या मैं कोई हायर स्टडीज कर रही हूँ. यस. हम गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो, प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो MBA? कौन मैं? Yes, ma'am. No, I am doing it from DU only as well. It's like that only. Okay. कि हम pursuing कर रहे हैं, ऐसे लगते हैं कि we are doing some higher education or something. We are pursuing our higher education. अगर हमें disclose नहीं करना कि what we are doing, तो BA के बाद we can say we are pursuing our higher education. हम higher education कर रहे हैं. ठीक है. So communicate like that only. So I'll request Simran if you want to ask any question from each or every candidate or student, if you wish to. No, ma'am. No, nothing. You don't want to know about anyone. आपको किसी के बारे में नहीं जानना? Because ma'am, मुझे सबने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो मुझे सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पता चल गया. Okay, good, great. Okay. So we have done some parts of English. हमने कुछ part cover किया है अपनी previous classes में. Can anyone tell Simran or the class कि what all thing we have covered in our previous classes? Anyone? What we have covered in our first class? Alphabet, vocabulary. Yes. And our introduction. yes, phrases about introduction की जो phrases होते हैं, I am starting, I am living, ऐसे करके जो phrases होते हैं, we have learnt about that. Introduction के बारे में हमने read करा था. After that, what we have covered? Family vocabulary. Family vocabulary, yes. हमने family vocabulary करा था. ठीक है. जिसकी आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी. सिमरन, you need to go through with each and every video. अगर आपको कोई डाउट आएगा, you can talk to me in the class only कि ये इसमें डाउट था. I'll sort it out. Okay. And after that, what we all think have covered? Simple sentences of subject, verb, and object. Yes. SVO. Subject, verb, and objects. Yes, correct. इससे हम sentence. Vocabularies. Yes. A to Z vocabularies. मैम A to Z पढ़ा था हमने. A to Z vocabulary पढ़ा था हमने. हमने A to Z नहीं सिखाया था. Vocabularies. मैम vowels पढ़े थे. Vowels, right? Vowels और And nouns, pronouns. Nouns, pronouns, correct. family vocabulary. Family vocabulary. Last class में हमने क्या पढ़ा था? Articles, correct. Punctuation. Yes, correct. Articles, punctuation. Capital letters. So these all things we have already covered, Simran. Okay.
सो आज का वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ मिक्स ग्रामर क्विज ओनली। ठीक है, आपको जिस जिसके बारे में कुछ पता हो, आई रिक्वेस्ट यू कि आप उसको करना कंटिन्यू। लाइक आर्टिकल्स अगर आपको पता हो तो वो आप करना, ठीक है। आई एम जस्ट स्टार्टिंग दिस स्लाइड, ओके, बिकॉज सबको आगे भी बढ़ना है। Okay. यस, Okay, सो ma'am. कैन एनीवन प्लीज टेल मी, हमने Okay. नाउन, प्रोनाउन और आर्टिकल्स पढ़े थे, और आज का हमारा टॉपिक भी यही है, नाउन, प्रोनाउंस एंड आर्टिकल्स। इसका हम क्विज कर रहे हैं, ओके। सो प्राची, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट आर नाउन्स? Yes, ma'am. यस, व्हाट आर नाउन्स? Ma'am, nouns are like name of a place or thing यस, or a name of a person करेक्ट, or ideas. यस करेक्ट। अब प्रॉपर डेफिनेशन कोई बता सकता है? रवि, कैन यू प्लीज टेल? सॉरी, याद नहीं है। Can I tell? यस हरिओम, प्लीज। Is the name of people, place, things. Noun is the name of people, place, things. और आइडियाज से आप डिनोट कर सकते हो, जैसे आपकी फीलिंग्स, लाइक Yes. आर यू ग्लैड टुडे, आर यू सैड टुडे। यस यस यस। रवि, इसकी तो बहुत छोटी डेफिनेशन थी, यू आर सेइंग कि याद नहीं। नाउन इज अ नेम नाउन्स ऑफ, को हिंदी में हम संज्ञा भी बोलते हैं। यस, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। आइडिया से हमारा क्या मतलब होता है? व्हाट आर आइडियाज? फीलिंग्स। फीलिंग्स। व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स? क्या हम फीलिंग्स में डाल सकते हैं? कुछ 2-3 एग्जांपल्स। लाइक आई एम वेरी ग्लैड इन टुडे, आई एम वेरी ग्लैड टुडे, वेरी बैड टुडे। मैम ग्लैड Glad, okay. Okay, glad, okay, right. And happiness, sadness, fear, anger, pride, I'm very angry, hope, yes, anxiety. yes, yes. सिमरन, समझ आया आपको व्हाट आर नाउन्स? Yes, ma'am. नाउन होते हैं, मैं दोबारा से ब्रीफ कर रही हूँ, जो भी क्लास में न्यू है या किसी को नहीं याद आ रहा, ओके। नाउन मुझे जो याद होते नहीं हैं, आ रहा। कौन बोला? अच्छा सुजीत जी, हाँ बता रही हूँ, कोई बात नहीं, मुझे पता था आप पहले बोलोगे। नाउन जो होते हैं, नाउन होते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को हम संज्ञा या फिर नाउन कहते हैं। अब इंग्लिश में क्या डेफिनेशन है? बहुत शॉर्ट और सिंपल सी डेफिनेशन है। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। आइडिया के साथ में आप ब्रैकेट लगा के उसको फीलिंग भी लिख सकते हो। अगर आपको नहीं पता लगता कि व्हाट आर आइडियाज, तो उसकी जगह आप साथ में आइडिया के साइड में ब्रैकेट लगा के लिख दो फीलिंग्स। ये देखो, बहुत ही छोटी डेफिनेशन है, कोई बहुत बड़ी नहीं है, तो ये तो आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, ठीक है। संज्ञा क्या हुई? नाउन क्या हो गया? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया, ओके। प्लीज नोट इट डाउन। किसी को अगर नहीं याद आ रहा है या नहीं पता लगता है, भूल जाते हैं, नोट इट डाउन। सिमरन, यू ऑल्सो नीड टू राइट। अपनी कॉपी में आप Ma'am, I can write. यू आर राइटिंग, आई कैन नहीं, मैं कर सकती हूँ नहीं, यू आर राइटिंग, ओके। हम नाउन बता रहे थे हम एक बार। यस, नाउन इज अ, आराम से, नाउन इज धीरे धीरे थोड़ा, नाउन इज अ नेम ऑफ, धीरे पहन दिया, दूसरे वाला वहां पे होगा, कॉपी के पास होगा, कॉपी के पास, नाउन, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, एक मिनट, प्लेस, प्लेस जगह। Noun is Yes. a name of person, place, animal. एनिमल। Yes, animal also. Animal, thing, 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 और idea. THIN। Thing और idea, IDEA, idea। आइडिया के साथ में आप ब्रैकेट में लिख दो कि फीलिंग्स। Done. हो गया। डन। अब ये डेफिनेशन देखो, वी आर, हाँ जी क्या कह रहे हो? मैम प्रनाउन वाला।
अभी सेम है इसका पूछती हूँ तो, ना। सेम है सेम तो नहीं है इसका प्रोनाउंस का। इल्मा, मतलब। प्रोनाउंस का आप डेफिनेशन बताओ। Yes, ma'am. हम्म, Pronoun is a word that is used instead of a noun to avoid repetition. यस करेक्ट, वेरी गुड। मुझे पता था इल्मा को प्रोनाउन की याद ही है, रट चुकी है प्रोनाउन की। ठीक है, प्रोनाउन की इल्मा कैन यू आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सबको बताओगे सो दैट दे कैन नोट इट डाउन, प्रोनाउन की डेफिनेशन। Yes, ma'am. यस प्लीज, A pronoun is a word. प्लीज एवरीवन प्लीज नोट इट डाउन। A pronoun is word a word that is used instead of a noun to avoid repetition. E Of a P noun. T I T I O N. मैम इंस्टेंट ऑफ नाउन के बाद क्या है मैम? To avoid repetition. अवॉइड मैम रिपीटेशन, ताकि हम मैम रिपीटेशन। हाँ जी, मैम इनके साथ साथ एग्जांपल भी देते रहो ना, मतलब क्लैरिटी हो जाएगी साथ के साथ, लाइक सेंटेंस बना के एग्जांपल थोड़ा सा अच्छा। तो ये तो हमने प्रीवियस क्लास में क्लैरिटी हो करा ही जाएगी। था, आपने रिवाइज क्यों नहीं किया? पहले मेरे को ये बताओ, आप तो प्रीवियस मैम क्लास मैंने में थे। रिवाइज कर रखा है, मेरे को पता है, सबको पता लग जाएगा मैम। अच्छा, तो अरे भाई सबको ये तो मैम वही बात है मैम, रटा रटा है फिर थोड़ा सा। रटा रटाया तो कुछ है ही नहीं। इसके लिए मैंने आपको प्रॉपर एक एक क्लासेस दी थी। अभी तो मेरे को टेस्ट लेना था इसका, अभी तो बहुत सारा टेस्ट बचा हुआ है इसके आगे। वो कोई बात नहीं, कोई अगर नहीं आपको मैम, टेस्ट एग्जाम्पल चाहिए मैं टेस्ट भी दे एग्जाम्पल लो। भी दे देती हूँ, कोई बात नहीं। नाउन का एग्जाम्पल क्या आएगा? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड एनिमल, थिंग। और नाउन के जो एग्जाम्पल्स हम लगाएंगे, जैसे पर्सन का नेम हो गया, हरिओम एक पर्सन का नेम है, डॉक्टर एक पर्सन है, इंजीनियर एक पर्सन है, सिमरन एक पर्सन है। ठीक है, किसी का नेम हो गया, नेम ऑफ अ पर्सन, पर्सन में नेम आ गया। प्लेस कौन सी हो गई? प्लेस हो गई जैसे ताजमहल एक जगह है। ठीक है, इसके अलावा पार्क एक जगह, हॉस्पिटल एक जगह है, इंडिया और दिल्ली, ये सारी किस में आ जाएंगी? प्लेसेस में आ जाएंगी। एनिमल में तो ऑब्वियसली पता है, लायन, टाइगर, ये सब हमारे किस में आ जाएंगे? एनिमल्स में आ जाएंगे। देन थिंग्स में क्या आएगा? लैपटॉप, बैग, बॉटल और फोन एक्सेट्रा। ओके, एंड आइडियाज में मतलब जो फीलिंग्स होती है, फीलिंग्स का मतलब होता है कि जो हम फील कर रहे हैं, चाहे हम गुस्सा है, वी आर एंग्री, एंग्री एक फीलिंग है, एक आइडिया हो गया। एक हम हैप्पी है, वी आर इन गिल्टी, हम बहुत उदास है, हमें किसी बात की गिल्टी फील हो रही है, हमने किसी का बुरा कर दिया, हमें बुरा लग रहा है, गिल्टी फील कर रहे हैं हम। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारी होती है फीलिंग्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नाउन। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. प्रोनाउंस की डेफिनेशन ये थी, जिसका मीन्स ये रहता है कि प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच वी यूज बिफोर नाउन्स सो दैट देयर इज नो रिपीटेशन। ठीक है, कि प्रोनाउन वो वर्ड है जिसको हम नाउन से पहले लगाते हैं, या फिर नाउन नाउन के मतलब नाउन के साथ लगा देते हैं, नाउन को रिप्लेस कर देते हैं ताकि कोई रिपीटेशन ना रहे। राइट, मान लो हम इसका एग्जाम्पल, मान लो मैं बोल रही हूँ रवि इज अ गुड बॉय, या मैंने बोल दिया कि हरिओम इज अ गुड बॉय। उसके बाद बार बार मैं उसका नाम ले रही हूँ, किसी पर्सन का बार बार मैं नाम लूँ कि हरिओम लिव्स इन दिल्ली, हरिओम लिव्स इन लाइक नरेला, हरिओम इज स्टार्टिंग हिज 12th और ग्रेजुएशन, मैं बार बार उसका नाम ले रही हूँ। तो इसकी जगह वी यूज प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं? यानी एग्जाम्पल्स मैंने बताए थे, व्हाट आर प्रोनाउंस? आई एम ए बॉय, I, ही she, he, they, she we. she, it He, they, she, it, it, we। दैट we, बॉय yes, the, so it, उसके बाद he, आई यू I, ही शी ही I, इट वी yes, दे yes। तो ये सारे क्या हो गए? प्रोनाउंस के एग्जाम्पल हो यू गए। ही मैंने बोला शी आई यू ही शी इट वी दे। यस करेक्ट। तो इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं? एक एग्जाम्पल उसका भी दे देती हूँ। जैसे मैंने बोला कि प्राची इज अ गुड गर्ल, प्राची लिव्स इन लुधियाना, प्राची is studying in 9th class, प्राची is a very hard working girl। मैंने बार बार उसका नाम यूज किया, पर मैं इसकी जगह इसको अवॉइड करने के लिए वी कैन यूज शी, क्योंकि वो एक लड़की है। ठीक है, आई कैन यूज शी, कि शी मतलब वो लड़की है।
Prachi is a good girl. She is very hard working. She study in 9th standard. She lives in Ludhiana. ऐसे करके, राइट? तो ये हो गया हमारा प्रोनाउन का यूज. क्लियर है प्रोनाउन सबको? नाउ स्टेप इनटू आर्टिकल्स. आर्टिकल्स की क्या डेफिनेशन है? एनीवन कैन प्लीज टेल मी व्हाट आर आर्टिकल्स? प्लीज. Yes, articles are words that come before nouns to show whether the noun is specific or general. जनरल. यस, करेक्ट. तो आर्टिकल, एक बार रवि प्लीज धीरे धीरे करके डेफिनेशन सबको बताओ सो दैट दे कैन नोट. प्लीज एवरीवन नोट इट डाउन. Okay. Articles डेफिनेशन are आया नहीं. रवि बता रहे हैं. Articles are words. Articles are words that come before nouns to show whether the noun is specific or general. Repeat करूं? टू शो. And टू शो के बाद क्या है? दोबारा रिपीट करो रवि स्टार्टिंग से. whether the और थोड़ा noun धीरे बोलना, शायद सुजीत जी ने नहीं लिखा. और साथ साथ स्पेल भी कर Okay. देना स्पेलिंग्स को, articles लाइक स्पेसिफिक, जनरल और ऐसे कोई स्पेलिंग्स होता है ना, काइंडली स्पेल दैट आल्सो. articles articles. Articles are words that come before nouns to show whether whether the noun is specific SPEAFIC or general GENERAL. नोट कर लिया सबने? सिमरन, दोबारा सुजीत जी, बोलूं? मैम Can I नहीं repeat कम. again? क्या कह Yes, रहे Can I हैं? repeat again? अब आर्टिकल्स के हम एग्जाम्पल समझते हैं. आर्टिकल Yes, का ma'am. मतलब क्या होता है? आर्टिकल जो है वो नाउन से पहले लगते हैं. नाउन मैंने आपको पढ़ाया, नाउन क्या होता है? नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया. नाउन से ये जो आर्टिकल्स होते हैं वो पहले लगते हैं ताकि वो ये चीज दर्शा सके, ये चीज बता सके कि वो स्पेसिफिक है या फिर जनरल है. ठीक है. अब स्पेसिफिक और जनरल की क्या डेफिनेशन थी या क्या डिफरेंस था? कैन एनीवन टेल what are specific and what are general? Specific. जनरल में Yes. किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात नहीं कर रहे होते, Hmm. किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात नहीं कर रहे होते, और जो स्पेसिफिक होता है उसमें किसी एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में बता रहे होते हैं. Yes. Specific are the things which we use to identify a certain thing. कि हमने ये बताना है कि भाई ये हम इसी की बात कर रहे हैं. अगर पार्किंग में बहुत सारी कार्स खड़ी है तो हम सिर्फ उस लाल गाड़ी की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट दैट रेड कार ओनली. ओके. तो दिस कम्स इन स्पेसिफिक, कि वो चीज स्पेसिफिक है, उसको दर्शाया गया है कि हाँ उसी के बारे में बात हो रही है. और अगर कोई चीज जनरल है, जनरल नहीं है, एक होती है कास्ट, जनरल कास्ट, वो नहीं है. ठीक है. जनरल कास्ट नहीं है, जनरल है. ये जनरल मीन्स कि आम, मतलब डॉग्स हैं तो कितने ही डॉग्स हैं, कोई भी हो सकता है ना. और क्या कहते हैं, अगर कार्स खड़ी है, देयर आर लॉट्स ऑफ कार्स इन द पार्किंग. ठीक है. पार्किंग में बहुत सारी कार खड़ी है, ये दिस कम्स इन जनरल, ये जनरल में आएगा. और स्पेसिफिक में हो गया देयर आर लॉट्स ऑफ कार्स इन द पार्किंग बट आई लाइक द रेड वन. पर मुझे जो है वो रेड वाली है वो बहुत पसंद है. ठीक है. तो ये आ गया उसमें आर्टिकल्स में. आर्टिकल्स 3 प्रकार के होते हैं, ए, एंड द. ठीक है. ए एंड द होता है. अब इसकी स्पेसिफिकेशन, ए एंड द, कौन राइट कर रहा है? And the यस, ए एंड, एक तो हो गया ए अ, मैम एंड या एन, ए एन एन, ma'am ए एन एन, and ओके And. ए एन. नॉट एंड सुजीत जी. ए AN. एन एन. यस. एन अम्ब्रेला, एन आउल, वो वाला एन. and और द. हाँ. जो हम अ यूज करते हैं, हम कॉन्सोनेंट के ठीक साथ है. यूज करते हैं. कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? जो वोवल वर्ड नहीं होते. हमारे पास टोटल 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं. ठीक है.
एंड आफ्टर दैट हम एन यूज करते हैं वोवल्स के साथ, ठीक है। वी यूज एन विद वोवल्स। वोवल्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, ठीक है। एंड आफ्टर दैट द हम यूज करते हैं जो चीज बहुत ही स्पेसिफिक हो, जो मैंने क्या बताया था, जब किसी के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात होती है कि वही गाड़ी है, महात्मा गांधी एक ही इंसान है, ठीक है, नाम बतेरे Right. हो सकते हैं, पर हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं तो The उसके साथ Bible. द बाइबल, द सन, द मून, यस, ठीक है। तो ये होगी डेफिनेशंस। Bhagavad. डेफिनेशंस प्लीज याद कर लेना। यहाँ तो मेरे को टेस्ट लेना था पर मेरे को पता लगा किसी को याद नहीं हुए ज्यादातर, ठीक है। तो प्लीज लर्न इट प्रॉपरली। अब याद करिए। हाँ, क्योंकि डेफिनेशन देखो मैंने जो करवाई है बहुत ही छोटी है और बहुत ही मीनिंगफुल है, कि आपका इसी में मीनिंग पता लग जाएगा किसी को भी और आपको खुद को भी। ओके, नेक्स्ट क्लास में आई वांट कि सबको ये तीनों डेफिनेशंस Yes, तो ma'am. याद होनी चाहिए। ओके, राइट। नाउ इट्स कम विद ए एन एंड द, ठीक है, फिलअप्स है ये। तो आई वांट एवरीवन टू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास एंड काइंडली नोट द आंसर्स ओनली। सिर्फ आंसर आप नोट कर लो बिकॉज टाइम का हमारे पास अब शॉर्टेज हो गया है। ओके, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास एंड नोट ऑल द आंसर्स, ए एंड द। हमें ए एंड द यूज करना है इनमें, इन क्वेश्चंस में। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट बता देती हूँ, आई सॉ डैश एलिफेंट एट द जू। ओके, अभी आप आंसर लिख लो, बट जब मैं एक एक से पूछूंगी आई वॉन्ट टू स्पेल इट। जितना सेंटेंस है ना आपको वो पूरा बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ एन एलिफेंट एट द जू, आपको भी इसी प्रकार से बोलना है। ओके, क्विकली प्लीज डू। सुजीत जी प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, रवि स्विच ऑन योर कैमरास। एक मिनट। ये we reward and platform and fifth क्या भाई? Sixth क्या भाई? She is wearing important dress. We wants to be sorry to be. This we saw an eagle. Nine का क्या भाई? My sister is watching a movie. एक मिनट करेंगे तो हाँ रवि, आपके आवाज पता लग रहे हैं और आंसर्स पता लग रहे थे। मैम डन। गुड इल्मा। I have done this homework. वेरी गुड। I also done, ma'am. ओके सिमरन। It's done. ओके हरिओम। सुजीत एंड प्राची, you both are left. Yes, ma'am, I have done. Okay Prachi, good.
हाँ ये कितना कर लिया आपने? सुजीत जी कितना हो गया आपका? मैम, रफली आंसर लिखे मैंने इन सबके। कोई बात नहीं। यस आज मैम। कितना लिख दिया सुजीत जी आपने? कितने हो गए? मैम 7 हो गए मैम। 7 हो गए? 7 हो गए चलो मैम। करो करो। बी क्विक नो। हाँ रवि, आप कह रहे हो ना कि आपने रफली लिखे हैं। आई वांट, ठीक है अभी तो आप रफली लिख लो, होमवर्क में आप पूरा लिख लेना इसको। अभी आई वांट कि जब मैं किसी को पूछूं हाँ हाँ कि यू वांट टू आंसर दिस, तो आपको पूरा सेंटेंस के साथ बोलना है उसको, ठीक है? आर्टिकल यूज करके एंड ठीक। देन प्रॉपर ठीक है। सेंटेंस, ओके? तो जीजी बी क्विक। ठीक ठीक ठीक। इतने में सारे अपना रिवाइज कर लो, इफ दे हैव रिटन इट करेक्टली और नॉट, ओके? हाँ मैम, मैम सारे ठीक पाएंगे पक्का। ओके ओके गुड। अरे भाई, कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया है। सही है भाई, सही मोटिवेशन, है। मोटिवेशन आ गई है। गुड। 3 4 दिन रुक जाओ, मैं मैम के साथ ही पढ़ाने लग जाऊंगा। क्या कह रहे हो हरिओम? मैं कह कह रहा हूँ रहा है कि तीन मैं चार दिन मैम के रुक साथ ही जाओ, पढ़ाने लग पार्टनरशिप में स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, आप अपना नया बैच खोल लेना, कोई बात नहीं। तेरे को देख के मेरे भी जोश में आ गया भाई। भाई लिख दे सारे ठीक बस। सारे ठीक है भाई। बस मैम गलत ना कह दे, वहीं डाउनफॉल में चला जाएगा सारा मोटिवेशन। अरे कोई नहीं। अरे जब तक गलती नहीं करेगा ना भाई, सीखेगा नहीं। एक बार। तो जीत सर, हो गया आपका? बस हो गया। अरे लगता है पूरा सेंटेंस लिख रहे हैं, है ना सुजीत भाई? आप पूरा सेंटेंस लिख रहे हो? हाँ। अरे सिर्फ आपको कोई इन नहीं, फिल लिखो इन द आप, कोई ब्लैंक्स दिक्कत का नहीं है। आंसर देने हैं। अरे कोई नहीं, लिखने दे भाई इनको, जैसा हो कंफर्टेबल गया। महसूस होगा लिखने। क्या, वेरी गुड। चलो चलो So चलो we'll, चलो। so we'll बस we'll कर लिया। start we'll start from सिमरन। सिमरन, पहले तो जिसके भी वो बंद करे हैं कैमरा, जो ऑन करो सारे, ठीक है? फिर हम स्टार्ट करेंगे। ओके, विल स्टार्ट फ्रॉम सिमरन। ठीक है सिमरन, आप बताओ फर्स्ट का विथ प्रॉपर सेंटेंस। I saw an elephant at the zoo. At the zoo. एट द जू। ओके करेक्ट। सेकेंड वन, सेकेंड बताओ सिमरन। Ma'am, she is reading a interesting book. करेक्शन एन कोई करना स्टोन चाहेगा? एन एन, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम एन वॉवल। एन होगा बिकॉज ये वोवल्स में आ रहे हैं। वॉवल, यस, बिकॉज आई जो वो होता है ए ई वॉवल आई होता है। ओ यू। यस करेक्ट। ओके, नाउ जो क्या कहते हैं, इल्मा। इल्मा थर्ड वन। We stayed at a hotel by the beach. एट द होटल, बिकॉज इसके अंदर उन्होंने At the स्पेसिफिकली hotel by the beach. एट, यस करेक्ट, बिकॉज उसने ये बता रखा है कि बीच पे जो होटल है उनने स्पेसिफिकेशन दे रखी है, राइट? फोर्थ वन इल्मा। He bought an apple and a banana. करेक्ट, गुड। फिफ्थ प्राची। The moon looks beautiful tonight. यस, द मून लुक्स ब्यूटिफुल टुनाइट। सिक्स्थ वन प्राची। She is wearing an orange dress. यस करेक्ट, गुड। सेवंथ हरिओम, 7th वन।
An artist when he grows up. आपकी वॉइस कट गई दोबारा. He wants to be an artist when he grows up. Yes, correct. An Grown up. artist. Grown up. Okay, grows है, grown नहीं है, grows है वहाँ पे. 8th one. हरिओम 8th one. अच्छा grows. We saw an eagle flying in the sky. Correct. Good. Ravi 9th one. My sister is watching a movie on the Netflix. Correct. On Netflix. On Correct. on Netflix. और 10th one. The Ganga is a ये क्या है? Sacred river in India. Sacred river. Excreted No. Sacred. in India. Sacred river का मीनिंग कोई बता सकता है? If अरे, anyone is aware about that. Sacred से मैं मतलब polluted है. No, not at all. Polluted. No, not at all. Sacred means वो नहीं होता. और कोई? Anyone? Guesses? पवित्र. Yes, पवित्र. It's a पवित्र. sacred, yes. पवित्र कि जो कि भगवान से जुड़ी हो, वो बहुत ज्यादा पवित्र हो. Okay, connected to God or something. ठीक है, sacred river. और 9th Holy. वाला. रवि Yes. रवि भाई we- 9th का क्या था? 9th का Ninth. क्या था? 9th का था a movie. movie bro. अब सी अ मूवी हमने क्यों यूज movie. किया? बिकॉज मूवी का कोई नेम वगैरह डिस्क्राइब नहीं था. अगर आपको ध्यान हो, जब मैंने आपको पढ़ाए थे आर्टिकल्स, मैंने ये कहा था कि अगर कोई मूवी का नाम पता हो, स्पेसिफिक किसी पर्सन का नाम स्पेसिफिक दे रखा हो, ताजमहल मॉन्यूमेंट वगैरह दे रखा हो, देन वी यूज द मूवी कि दंगल दंगल की मूवी थी, है ना? तो इसलिए नाउ वी आर यूजिंग सुजीत जी 11th वन. I was a आई वॉच तो है ही नहीं. unfortunate. 11th. I see. I saw. I saw. I saw I saw a unicorn in my dream. ओहो, रवि पढ़ने दो उन्हें. unique in my dream. अब आपने क्या यूज करा? कोई नहीं. I saw क्या? नहीं, अरे पहले पे तो आओ. हाँ. पहले पे तो आओ. 11th में आई सॉ क्या लिखा आपने? आई सॉ. a unicorn. अब ये बताओ पहले तो कि क्यों आया? क्या है? यूनिकॉर्न है. यूनिकॉर्न होता है जिसका एक सींग होता है हॉर्स का. Unicorn in my dream. यूनिकॉर्न. ठीक है, यूनिकॉर्न इन माई ड्रीम. ठीक है, अब आई सॉ एन आएगा या आएगा? N आएगा. N. एन आएगा. क्यों एन आएगा? क्योंकि वो यूनिकॉर्न है, यू से स्टार्ट हो रहा है. वो यू से स्टार्ट हो रहा है, यूनिकॉर्न. मैंने आपको बताया था कि वोवल्स जो होते हैं AEIOU होते हैं, उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? एन. N आएगा. एन. ठीक है, 12th पढ़ो आप सुजीत जी. 12th वन. और मुझे एक चीज और ऐड कर सकता हूँ मैं इसके अंदर? करो. अब हम जरूरी नहीं है कि वोवल हो और कॉन्सोनेंट हो. अरे आवाज कहाँ से आ रहा है भाई? जब मैंने पढ़ा था ये, तो मेरे ख्याल से हमें ना वर्ड पे भी नहीं जाना चाहिए, हमें प्रोनाउंसिएशन पे भी जाना चाहिए. प्रोनाउंसिएशन. यस है ना? यस. क्योंकि कई ये चीजें मुझे ऐसी थोड़ा ऐड करना था. जरूरी नहीं के कि साथ होता है. कई चीजें ऐसी होती है. फॉर एग्जाम्पल अभी होता है जैसे मतलब ऐसे तो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा. मेजरली तो यूज नहीं होते, ए एन दा के साथ ही होते. बहुत कम चांसेस रहते हैं कि हमें उसमें आता है कि किसी साउंड में हमें अगर फील हो रहा है कि हाँ इट स्टार्ट्स फ्रॉम वोवल और समथिंग. ओके, मेजरली आप अभी यही याद रखो, क्योंकि बेसिक लेवल स्टार्ट कर रहे हैं हम. कुछ लोगों को यही अभी क्लियर नहीं हो रहा. वो देखो यूनिकॉर्न में लगा रहे हैं, है ना? तो लेट इट बी शार्प, क्लियर एंड एवरीथिंग. ठीक है. हाँ सुजीत जी. मैम सुजीत सर पढ़ तो अच्छे रहे हैं, मतलब थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं.
वो हिचकिचा तो रहे हैं और क्लास टाइमली अटेंड नहीं कर रहे हैं। पुराना वो वॉवल जिनको नहीं पता लगे ना कि वॉवल्स क्या होते हैं, इसीलिए अब उनको नहीं याद आ रहा, समझ आ रहा। इसीलिए मैं कह रही थी थोड़ा सा पंक्चुअल रहना पड़ेगा सिर्फ क्लासेस को लेके। अगर नहीं भी कर पा रहे तो एटलीस्ट उन वीडियोस को देख के उसको क्लियर कर लो, है ना। चलो सुजीत जी 12th 1 12वां बताओ। अनम्यूट। अनम्यूट करो सुजीत जी। He is eating. सही जा रहे हो? लाने में अभी नहीं कर पा रहा है। क्या He is रीड? eating a sandwich and यस। drink. पर मैम अंडरलाइन में याद नहीं आ रहा था। जूस है, क्या होएगा? जूस कोई सा भी हो सकता है ना। वहां नहीं लिखा कि वो पोमोग्रेनेट जूस पी रहा है। ही इज ईटिंग अ सैंडविच एंड ड्रिंकिंग अ जूस, है ना। वो एक सैंडविच खा रहा है, हमें नहीं He पता is क्या eating. खा रहा है, सैंडविच कौन सा खा रहा है। एंड ही इज ड्रिंकिंग अ जूस ऑल्सो, है ना। मैं मतलब बोथ साइड ए लगेगा। यस। दोनों साइड, हाँ। A and the ओके 13th 1 कौन बताएगा? इल्मा 13th 1। कैन यू पास मी दी पेन ऑन द टेबल? अभी आप कब से इल्मा बन गए? मैं इल्मा से पूछ रही थी। हाँ इल्मा बताओ। कोई नहीं। ये कुछ होते हैं ना क्लास में ओवर स्मार्ट स्टूडेंट्स, हर क्लास में एक तो होता है। यहाँ क्लास में अरे रवि बन नहीं रवि है। नहीं नहीं नहीं, मैं वैसा नहीं हूँ। नहीं 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 नहीं। चलो इल्मा 13th का बताओ। मैं ना याद करने की कोशिश करता हूँ ना, ऐसा मुझे याद रहता है। Can you pass me the pen on the table? करेक्ट। पेन की बात हो रही है, हमें पता लग रहा है टेबल पे एक पेन है जिसकी बात हो रही है। विल यूजिंग द। ओके सिमरन 14th 1। ma'am, I saw an aeroplane take off from the runway. यस। एरोप्लेन नहीं बोलते, उसकी प्रोनाउंसिएशन एयरप्लेन होता है, ठीक है, एयरप्लेन। ठीक है, करेक्ट कर लेना। Airplane. यस। रांची 15th 1। I bought an umbrella from the market because it was raining. यस करेक्ट, गुड। तो इसकी प्रैक्टिस सारे कर लेना। जिसको नहीं याद आ रहा सुजीत जी एंड सिमरन, फॉर यू स्पेशली, पुरानी वीडियो जब आएगी आर्टिकल्स की, कल आ जाएगी या जो भी है, या पुराने वॉवल्स वगैरह थे उसको प्लीज क्लियर कर लो। क्योंकि मैं आपको एक रीजन बता रही हूँ और जो कि बहुत ही जेन्युइन रीजन है। हम जब भी इंग्लिश पढ़ते हैं, अगर आपको ध्यान हो, जब हमने स्कूल्स में पढ़ा था या कभी भी पढ़ते हैं, हम अभी पढ़ रहे हैं, तो हम एक ना पैटर्न के साथ चलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम पहले आपको सेंटेंसेस बनाना सिखाएंगे, उसके बाद हम आपको ग्रामर सिखाएंगे, राइट। हम आपको साथ साथ दोनों चीजें लेके चलते हैं जो नेसेसरी रहता है। अब इस वाली उसमें क्या कहते हैं, इस वाली आर्टिकल्स वगैरह में, इसमें हम नाउन की बात कर रहे हैं, प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए आर्टिकल शुरू करने से पहले आपको नाउन, प्रोनाउन, वॉवल वगैरह सब क्लियर होना चाहिए, जो मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। इसीलिए आई विश कि आप उस चीज को क्लियर करके चलो, ठीक है, तभी आपको आगे का समझ आएगा। बाकी मैं ये होमवर्क दूंगी और पुराना होमवर्क भी कर लेना। अभी तो आई थिंक सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, चलो कोई बात नहीं। ठीक है। 10 मिनट भी नहीं रह गए, टाइम तो हो गया। ओके सो आई गिव यू, मैं अभी आपको सबको अराउंड 80 वर्ब्स वर्ब दूंगी, 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपको एक पीडीएफ दूंगी, उसके अंदर अराउंड 80 के समथिंग वर्ब्स दे रखे हैं। कई मैंने आपको करवा भी रखे हैं, पुरानी क्लास में 3 फॉर्म ऑफ वर्ब हमने करी थी, है ना। फ्रीज का, गो वेंट गॉन, ईट एट इटन, यस। एवरीथिंग, बहुत सारे हमने अराउंड 50 के अराउंड करे थे। तो एक्स्ट्रा थोड़े से हैं, ठीक है, उसको लर्न कर लेना सारे। कल मैं टेस्ट लूंगी, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये जो आपकी अभी मैंने और वो बनाए थे टेस्ट वगैरह हैं इसका, जो हम इसी के बारे में कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा चल गया इसलिए ये नहीं हो पाया, कोई बात नहीं।
आर्टिकल्स याद होने चाहिए, नाउन और प्रोनाउन याद करके आना, बिकॉज टेस्ट उसी का ही है। और वर्ब्स जो मैं आपको दूंगी उसको लर्न करके उसकी हिंदी का मीनिंग लिख लेना, जैसे पुरानी हमने क्लास में करा था कि इसका मीनिंग क्या होता है। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि इसका मीनिंग क्या होता है, और सेंटेंस में आप उसको यूज कर पाओगे। अभी कई चीजें आप भूल चुके हो, है ना। जैसे आप डेली लाइफ में डिग वर्ड यूज करते हो कि डिग करना, आप बोलोगे कि यार इस मिट्टी को खोद दो, है ना, ये बोलते हैं। पर यूजुअली क्या बीच की होता है। आवाज ही कट गई, हाँ जी, बीच में आवाज ही नहीं आया। मैं ये कह रही हूँ कि नेटवर्क इश्यू लग रहा है। हम जब भी कुछ चीज यूज कर रहे हैं डेली लाइफ में अपनी, तो हम इंग्लिश में बहुत कम यूज करते हैं। जैसे हम बोलेंगे इस मिट्टी को खोद दो, हम ये नहीं बोलेंगे डिग कर दो इसको, राइट। कईयों को मीनिंग नहीं पता होगा कि डिग का मतलब क्या होता है, उसका मतलब खोदना होता है, राइट। तो जब हम सेंटेंस बिल्ड करेंगे, बनाएंगे, लिखेंगे, याद करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ना हमारी वोकैबुलरी बैंक जो है वो बढ़ती रहेगी। करेक्ट। हमारे जो दिमाग में जो हमारा बैंक है, हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश को लेके, हमारी वो इंक्रीज होती रहेगी। जैसे मेरे ख्याल में सुजीत जी ने आज एक नया वर्ड समझा होगा, यूनिकॉर्न। समझा, है ना। यूनिकॉर्न का मतलब क्या हम होता है। यूनिकॉर्न आई थिंक उस हॉर्स को कहते हैं ना, जो लड़कियों के फेरी टेल में होते हैं, जो लड़कियों फेरी टेल्स में होते हैं वो हॉर्स। हाँ, वही होते हैं जिनका एक सींग होता है नोज के मैम, ऊपर, ठीक है। हाँ, वही होता है यूनिकॉर्न। व्हाइट कलर का होता है, फर्स होते हैं उसके बहुत सुंदर। वो ड्रीम वगैरह, ड्रीम के लिए कार्टून्स वगैरह में ज्यादा होता है, जनरली वो नहीं है, ठीक है। तो यूनिकॉर्न के साथ एन लगता है, और यूनिकॉर्न एक न्यू वर्ड हो गया, ठीक है। ऐसी सिमरन ने सीखा होगा कि एरोप्लेन नहीं एयरप्लेन बोलते हैं, राइट। कहाँ ए एन दाल लगना है, वो सब चीजें। Yes, ma'am. तो आई वांट कि पुरानी वीडियोस देख लो, चाहे उनको, अगर आपको अच्छे से आ भी गया है। आई वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड कि मैंने अभी नाउन, प्रोनाउन और आर्टिकल तीनों करवाए हैं और फिर सारे लोग भूल गए मेजरली, ठीक है। अब उसको क्लियर रखना, ओके। टेस्ट वगैरह में लेती रहूंगी, और वर्ब्स को याद करके उसकी हिंदी लिखनी है, ओके। जो होमवर्क नहीं कर रहे सुजीत जी, आई वॉन्ट योर होमवर्क टू, यस मैम। ओके। और सिमरन, आप हेल्प लेनी होगी समझने के लिए कि कैसे क्या करना है, हरिओम से ले लेना, ग्रुप में ऐड हो, ग्रुप में पूछ लेना कि कैसे क्या करना है। मैं आपको डेली के होमवर्क्स देती हूँ, फ्राइडे फ्राइडे के बाद सैटरडे और संडे हमारा ऑफ रहता है, ओके। तब भी मैं आपको होमवर्क्स देती हूँ 2 डेज का। वो आपको कंप्लीट करना होता है नेक्स्ट डे से पहले पहले, लाइक नेक्स्ट क्लास से पहले पहले, राइट। क्लियर है। Okay. ओके, चलो, Yes, ma'am. थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड नाइट, बाय बाय।